ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مکرم فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالی نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میری ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ، تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج و عمرے کا ثواب لکھ
दिया जाता है। ये वही कलिमात हैं जो प्यासे को सैराब कर देते हैं, भूखे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, पहाड़ों को रेजा रेजा कर देते हैं, आग को फौरन बुझा देते हैं। हाफिज कुरान को ऐसा हाफजा अता करते हैं कि अल्फाज दिल पर नक्श हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये कलिमात पढ़े और उसी रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हर हाजत के लिए ये दुआ पढ़ी और कभी रद्द न हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाही देते हैं, मुझे कुरान हिफ्ज करने में मुश्किल थी, मैंने ये कलिमात पढ़े और कुरान मेरे सीने में उतर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं तलवार थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता। मैं ये कलिमात पढ़ता जो जमीन आसमान के दरमियान पुल बांध देते और फिर मेरी तलवार रोशनी की मानद लंबी होकर दुश्मन के सीने में उतर जाती। मैं जहाँ चाहता मेरा वार वहीं पहुँच जाता और पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह पिघल जाते। मेरी तलवार सिर्फ फौलाद की नहीं थी बल्कि इसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनते ही लरज उठते, मैदान जंग में मेरी ज़रबों से गूंजने लगता और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों में आ गिरी। अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता किए जो जुल्म का बोझ काट देते, वो बाजू दिए जो हक का झंडा बुलंद करते और वो नजर दी जो आने वाले वक्त की चालों को भांप लेती। मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं बल्कि इस कामिल यकीन से मिली कि मैं हक पर था और हक की हिमायत में मेरा हर वार बिजली की कलक और हर कदम शेर की गरज था। ये वो खजाना है जिसे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए, वो राज जो कयामत में निजात का जरिया बनेगा। ये एक हैरान कुन मंजर था। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े निहायत सफेद, बाल काले और सफर के कोई आसार न थे। किसी ने इसे पहले नहीं देखा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बिल्कुल सामने बैठकर घुटनों से घुटने मिला दिए और हाथ अपनी जानू पर रख दिए। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और इस्तिताअत हो तो हज करो। अजनबी ने कहा, आपने सच फरमाया। सहाबा इकराम हैरान थे। ये शख्स सवाल भी कर रहा था और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा था। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, कयामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उस शख्स ने फिर वही कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा, मुझे एहसान के बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो और अगर ये ना हो तो कम अज कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी ने कयामत की निशानियां पूछी और कुछ निशानियों का जिक्र के बाद वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये कौन था? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो एक आँख से काना होगा, उसकी दूसरी आँख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन इसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और इसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। सहाबा हैरान होकर सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, वो जमीन में 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वो दिन इस तरह होंगे, पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने फौरन पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा क्या इसमें हम सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब करके नमाजें अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल पूरी जमीन पर तेजी से सफर करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ाती है। वो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते इसकी हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल की खबर सुनाई। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर उतरेंगे। इनके हाथों में नेजा होगा। वो दज्जाल को लोत इसराइल के करीब एक जगह में कत्ल करेंगे। एक
एक रात जब मक्का खामोश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें आसमानी सफर पर ले जाया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आपका सफर आसमान की तरफ हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याह्या और हजरत ईसा, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ, चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस, पांचवें आसमान पर हजरत हारून, छठे आसमान पर हजरत मूसा, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहाँ जिब्राइल रुक गए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हुई, जहाँ 50 नमाजों का हुक्म हुआ, जो बाद में 5 कर दी गयी, लेकिन इनका अजर 50 ही का रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुफार ने मजाक उड़ाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस कुदसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, बस मुझसे खाने का सवाल करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, बस मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब पहले और पिछले इंसान और जिन एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं सबको अता कर दूं, तो मेरे खजानों में इतनी भी कमी ना होगी जितना कि समंदर में सुई डबोने से पानी कम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, हम में मुफलिस वो है जिसके पास न दिरहम हो न बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, बस इसकी नेकियां इन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां खत्म हो गयीं और हुकूक बाकी रहे तो इन लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने इन्हें आजमाना चाहा, बस इनके पास एक फरिश्ता आया। सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट, बस इसे हामला ऊंटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय, फिर इसे हामला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अल्लाह मुझे बिनाई अता करे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो नाबीना ठीक हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी, बस इसे हामला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए यहाँ तक के इनके पास वादियाँ भर गयीं। फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास उसकी पुरानी हालत में आया और कहा, मुझे कुछ दो, मैं मोहताज हूँ। उसने कहा, ये सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ता ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास गया, उसने भी इनकार किया तो दुआ दी कि अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर नाबीना के पास आया और कहा, मैं मस्कीन और मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दो। उसने कहा, ये सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, ले जितना चाहे। फरिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रख, ये महज आजमाइश थी, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और तेरे साथियों से नाराज हो गया। एक अजीम राज, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की लाई हुई वो खास दुआ। रात का पिछला पहर था, मदीना की फिजाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे इबादत में मसरूफ थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं महक उठी और फरिश्ते अदब से झुक गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो कयामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। इसके चेहरे से नूर यूं फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे ये कौन है, कोई नबी है या कोई वली या कोई मुकर्रब फरिश्ता है। तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुशनसीब है जिसने जिंदगी में एक मर्तबा वो कलिमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ। और फिर ये बंदा बगैर किसी हिसाब और आजाब के जन्नत में दाखिल होगा। पुल सरात पर बिजली की मानद गुजरेगा जैसे वो कभी गुनहगार था ही नहीं, अगरचे इसके गुनाह समुद्रों की झाग, दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज्यादा हूँ। अल्लाह ताला इसे मुआफ फरमा देगा। इसे 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर ये कलिमात आग पर पढ़े जाएं तो वो फौरन बुझ जाएगी। पहाड़ पर पढ़े जाएं तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई प्यासा हो और ये दुआ पढ़े तो फौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई भूखा हो और ये दुआ पढ़े तो रिज़्क का दरवाजा उस पर खुल जाएगा। अगर कोई हाफिज कुरान न बन पा रहा हो, इन कलिमात के जरिए इसके हाफजे में कुरान समा जाएगा। वो बाबरकत कलिमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हकमुल अदलुल मतीन, व रब्बुना आबाउनल अव्वलून, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्यु दाइमन अबदन ला यमूतु बियदिहिल खैर इलैहिल मसीर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का शुमार उन हस्तियों में होता है जो अदल इंसाफ, हलम व बुर्दबारी और शुजात में बेमिसाल थे। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा में काजी के मनसब पर फायज थे। एक दिन एक बुरा शख्स अदालत में हाजिर हुआ और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरी सारी जमा पूंजी रास्ते में खो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सख्त परेशान हूँ, मेरी कोई मदद कीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने निहायत शफकत से उस बूढ़े की तरफ देखा और फरमाया, तुम किस शहर से आए हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं शाम का रहने वाला हूँ। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने मजीद पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? बूढ़े ने कहा, मैं मजदूर हूँ, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और मेरे लिए मेहनत मुशक्कत करना मुमकिन नहीं रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर इंतहाई अफसोस में मुब्तला हो गई और फरमाया, ये कैसा इंसाफ है कि जब तक तुम्हारी जवानी और ताकत थी तुम्हें काम पर लगाया गया, लेकिन जब तुम कमजोर और नातमा हो गए हो तो तुम्हें बेयार मददगार छोड़ दिया गया। इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन बैतुल माल के निगरान को बुलाया और हुक्म दिया कि इस बूढ़े शख्स का वजीफा मुकर्रर किया जाए और इसे रोजाना बैतुल माल से खर्च दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत सख्ती से फरमाया, ये कोई इंसाफ नहीं कि हम इसकी जवानी की मेहनत से फायदा उठाएं और जब ये बूढ़ा हो जाए तो इसे बेसहारा छोड़ दें। ये इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि वो अपने ज़ईफ और माजूर शहरियों का पूरा पूरा ख्याल रखे। ये सुनते ही मजलिस में बैठे तमाम इफराद हैरत ज़दा आए गए कि एक गैर मुस्लिम बूढ़े के लिए भी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इतना रहम और अदल का मुजाहरा किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न सिर्फ फौरी मदद फराम की बल्कि इस्लामी हुकूमत के अदल इंसाफ की एक रोशन मिसाल कायम कर दी। ये वाकया इस बात का सबूत है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के अदल इंसाफ की कोई हद न थी और वो हर इंसान को बराबर समझते थे, चाहे वो किसी भी मजहब या नस्ल से ताल्लुक रखता हो। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों पर फजल करम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।